Yes, Namaskar, good evening. Welcome to this press conference. We today had a very landmark decisions in our fourth executive committee meeting at AIFF House in New Delhi. So therefore, we took some decision on women's football, how we can shape the future of women's football. Then on the grassroots aspect, how we can reach to the biggest goal we have to see that India has a culture and the biggest number of children justifying India's population. And that was one of the key decisions because I leave it to the president to announce the exact decision. Just I'm giving a bit of a teaser, that's all. And we also decided to bring in those legacy institutional teams back into the structure. And then we are missing with the elite player development pathway, how that can be put in place that we have discussed. And then we have a lot of influence of foreign players coming into our domestic structure and it's only growing. Therefore, whether it is helping our football or not, so that we have decided. And then also on the training compensation, solidarity payment, we wanted to make it very inclusive. That decision we have taken. And then the most important part is our women player, how we can increase their economic value chain in the whole system. So therefore, these are some of the important decisions taken, and we had a 4.5 hours of discussion. To that long it happened. So therefore, you can understand it was a very open executive committee meeting where we have taken the suggestions, recommendations, viewpoints of everyone. So now it's over to our President, Mr. Kalyan Chaubey, to announce that those exact decisions and the projects which would taking it forward as in line with our vision 2047. Good evening, friends. As Secretary General mentioned, that we had a long executive committee meeting and we came up with few decisions today. And one of that is the minimum salary for the women football player. So, like men football, AIFF is also keen to promote and develop women football. And we have seen how women are doing well. So therefore, from next IWL onwards, we are going to have home and away IWL, and also the minimum salary of women player will be 3.2 lakhs. So this is the bare minimum that the player needs to get it, and so then it will be a, let's say, marquee player concept, and detail the clubs will get from the league development committee. And also we are going to expand IWL like not in a short span. It's going to be minimum 25 to 30 matches each player will play, and it will go for a longer duration. We are going to have 2024-2025. We have two subdivision, and 25-26 women football will feature 4-tier league, including introduction of state league. So, like the men football state league we are seeing, we also organize women football league from year 25-26. So right now, our main focus is to increase number of teams, B, to increase number of players.
This is a World Cup year for women football, and we wish to lay the foundation for growth of women game in India this way. I strongly believe the decision will help women football. There is also another project we have launched or got passed it from EC, that is Project Diamond. What is Project Diamond? AIFF will launch Project Diamond for elite player development with participation from ISL, I-League and elite academies to be part of it. FIFA Talent Development Scheme, as you know, the FIFA TDS, led by FIFA Chief Global Department Arsene Wenger, and FIFA will play active role in it. And 3rd May their team is coming to Delhi. So thereafter we can also follow their guidelines how this Project Diamond can be useful for youth development. Since, as you know, friends, that we call our senior national team as Blue Tiger or Blue Tigers, as most of the national team have their own name. So we thought to call our grassroots teams, youth teams, the teams under 7, under 8, under 10, under 12. These grassroots teams, we can call them Blue Cubs. So we call this tournament an elaborate grassroots restructuring we have planned with the launch of Blue Cubs that would help in developing foundation for future talents, where these FIFA TDS are going to guide us. This program will feature an elite grassroots program along with involvement of governments, NGOs, clubs, schools, etc. This is in line with our vision, the vision we often say 2047, and initially our idea is to increase the participation of children as many as possible. And when I say children, it is boys and girls both. We have a little ambitious target that till 2026, we are hoping that around 3.5 crore children will play football through our Blue Cubs college. We are also going to launch institutional league. As you most of the journalist friends in this house will definitely can recall that there are several office teams like Air India, HL, IIT, Coal India, Railways, Services, AG, Income Tax, many more, Oil India, SAIL, GAIL, then Punjab Electricity Board, BSF. Last 12 years, there has not been any recruitment in these institutions because slowly or gradually these teams are obsoleted from Indian football. So if we can bring them back into Indian football competition, we believe then many football players can get service. So their life can be secured through the government service or this institutional service. So we are going to launch institutional league from this year onwards. So like all of these institutions are semi-professional or amateurs. Players will be employee of these institutes, so they must be having their own infrastructure. So if Oil India from Assam wants to come and play in Mumbai with Air India, so Air India will host them. If a HL from Bangalore wants to come and play in State Bank or Reserve Bank of Kolkata, they can do it. So we have to create this institutional league. This will definitely create job opportunity for men and women, and also it will involve these traditional institutions, government institutions involved with football like they were before. We'll also encourage them to form or maintain women team. It is also we have decided that in university we will start university championship. There the women player can be encouraged to play. And the most importantly,
because of foreign players playing in Indian football. So we have closed option for Indian player to get games time match practices. I don't think any of the Indian club, be it a top division or bottom division, playing in any district or any tournament, they are not having a foreign striker, African striker. This is closing opportunity for your Indian striker to get match time. So therefore, we have decided that in our last meeting we have decided that there will not be any foreign player in I-League 2, and now we have decided there will be no foreign player in state leagues. State leagues no foreign player. The tournaments will have no foreign player. So from the from the lower division, where the development of players are there, where the pool is larger, the Indian player will get more competitive matches. They will get more match time, game time, so that this Indian player, they can develop their skills. You must have noticed that whenever there is a match, Indian player, they always in reserve bench, and that the foreigners are playing either in central midfielder, stopper back, or the striking position. So therefore, we have decided the state league will not have any foreign player, at least for next 2 years. We'll see how it works, whether we create chance for more Indian players to develop their competitive skills. And this is high time, because Indian national team is also needs more striking players. We'll take questions. I request that you please raise your hand and I'll get you a mic. Apparently, on one hand, you are encouraging women football in India, okay, but recently a prominent club, it's an AIFF club, have abandoned their women's club, football club recently. You notice that? You see, I mean, a decision for a national interest, cannot be, affected with one single decision by one particular club or institution. Shutting any club is definitely not good for football, but I think this is for the larger interest of women football. Tomorrow, few clubs may say that they are not ready to pay minimum salary to the women footballer, because that might increase their budget. So they will close down their team. So possibly we cannot stop them, but that may may not affect the policy. Policy को तो हम बंद नहीं कर सकते। तो क्योंकि हमें ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी करना है कि वुमेन फुटबॉलर यदि खेलते हैं तो उनकी एक बेसिक मिनिमम सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना कि इनको हम एक्सप्लॉइट करें। उसके लिए जो फिट होंगे पॉलिसी के साथ वो आएंगे, साथ चलेंगे। फिट नहीं होंगे तो जो दूसरे फिट होंगे उनको लेके आएंगे। आई एम श्योर जितने इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि फुटबॉल के साथ जुड़े, और उनमें से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि वुमेन फुटबॉल के साथ जुड़े। वो आकर के मिनिमम सैलरी दे सकते हैं। एंड आवर जॉब इज टू इंश्योर दैट द कंपटीशन जब हो, कंपटीशन की ग्राउंड कंडीशन अच्छा हो, कंपटीशन की कैलेंडर सही हो, पहले से बताया जाए, मैच की ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हो, इफ इट इज वुमेन टीम, उसके चेंजिंग रूम प्रॉपर हो, उसके लॉजिस्टिकल सही हो, देयर शुड बी प्रॉपर वॉशरूम सिस्टम। सो मैं समझता हूँ कि कोई एक बंद करने से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी बंद करे। सब साथ में सर हर साल 4 नए क्लब आते हैं, 3 बंद हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा, जब हम लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो क्यों बंद हो रहा है वो देखना पड़ेगा। क्या मन लेके वो आए थे और क्या उनका एक्सपेक्टेशन था, अपेक्षा था, उनको नहीं मिला, तो वो देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ। कोई भी बंद हो,
ये हम कभी ये नहीं चाहते। मेरे सवाल आपसे दो सवाल थे। एक है कि जो सीनियर एशियन मेंस एशियन कप है उसका प्रिपरेशन के लिए जो कैलेंडर है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का वो कैसे शेड्यूल किया जा रहा है, हाउ मेनी मैचेस आर दे प्लेइंग, क्या उनका प्रिपरेशन स्ट्रक्चर रहेगा गोइंग टू द एशियन कप, ये एक सवाल है। और दूसरा ये है कि दूसरा सवाल है संतोष ट्रॉफी लेके हमने देखा कि इस बार सऊदी में जो टूर्नामेंट प्रॉपर किया गया, लोग गए भी, कवर भी किए, लेकिन हम जब देखें कि शोलापुर में जब मैचेस हुए, लाइक स्टेडियम वाज ओवरफ्लोइंग, मतलब छोटे सेंटर्स में संतोष बंगाल महाराष्ट्र के मैच में जगह नहीं थी। तो क्या आप ये डिसीजन को नेक्स्ट सीजन के लिए रिविजिट करेंगे? ये दो सवाल है। डिसीजन को नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर क्या आप इंडिया में टायर 2 सिटीज में संतोष ट्रॉफी जहाँ पे ऐसे भीड़ हो रहा है, ऐसा क्राउड रिस्पांस है, उसको देखते हुए? देखिए, एक तो क्या है कि हमारा एक जेन्युइन परसेप्शन है कि फुटबॉल भारत में सिर्फ केरला, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में होता है। इसके बाहर भी फुटबॉल खेला जाता है, ऐसा हम अपने बातों में नहीं कहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भारत के बहुत सारे जिला में, बहुत सारे पॉकेट्स में फुटबॉल खेला जाता है। कोल्हापुर उसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक जगह है जहाँ फुटबॉल की लोकप्रियता अधिक है। और जैसा कि संतोष ट्रॉफी की बात आपने करी, संतोष ट्रॉफी के लिए इस साल जो है हमने और स्ट्रक्चर वे में करना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार इस बात को रखा कि हमारे जो 36 मेंबर एसोसिएशंस हैं वो सभी इक्वल फुटबॉल प्लेइंग स्टेट नहीं है। तो यदि हम उस पर 2 टीआर में उनको हम बांटे और उस पर फिर क्वालिफिकेशन हम उसकी कॉम्पिटिशन करें, क्वालिफाइंग कॉम्पिटिशन करें, तो उससे क्या है कि संतोष ट्रॉफी का सही तरीके से हम इसकी आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ भी हम लोग ये भी करेंगे, आगे भी आपको बताएंगे कि संतोष ट्रॉफी के साथ साथ मान लीजिए बरदोली का, रोवर्स का, उड़ीसा में कलिंगा का, बैंगलोर में स्टैफोर्ड का, ये जो सारे कप है उसका एक समय लेगेसी, फुटबॉल की लेगेसी है। कोई 100 साल पुराना, कोई आप 100 साल से अधिक, कोई 70 ईयर्स पुराना। तो यदि हमारे बच्चे इस लेगेसी कप के साथ जुड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा फुटबॉल के लिए, और संतोष ट्रॉफी भी उसमें से ही एक रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम इनमें से कोई टूर्नामेंट को भी हम प्रमोट करें, और संतोष ट्रॉफी को पिछले बार जैसा किए थे उससे भी हम बेहतर करने की प्रयास करें। और सर वो एशियन कप का कुछ कॉम्पिटिशन है, एनीथिंग ऑन एशियन कप preparation of the Indian See, the men's? Asian Cup preparation, we will not miss any of the international windows. We will be playing in June the Intercontinental. Then again June we will play the SAF Championship, and then in September Kings Cup, and in October we will play the Merdeka. The November, December, that's where the FIFA qualification window starts. Yeah, and then we are still deciding whether how many days prior to the Asia Cup we can start the preparatory camp. So that is in discussion with our stakeholders. Maybe in another 2 weeks' time we will be very sure that whether it will be 20 days or 15 days or 30 days, whatever best possible within the domestic compulsion of our calendar, we will come back and share with you all. Because ISL will start by then. ISL will have to start in September sometime or October early. I don't know. We are still discussing the whole So overall it calendar. will overlap with India's these international tournaments. No, when the India team will play, I don't think then we will have those top tier competitions in India, because our focus will be, to get the players from all the big clubs and camp, train and prepare ourselves better. But our preparation has already started. What I can say from the Tri-Nation Cup. And Merdeka we are going after a long time. Merdeka used to be a legacy tournament for Indian football. मर्डेका जो है बंद था पिछले 2013 के बाद से, मर्डेका हुआ नहीं था वहाँ पे। तो हमने मलेशिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से जब मिला था EFC के दौरान, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था यदि आप मर्डेका को दोबारा शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा, और यदि आप शुरू करने के बाद भारत को भी बुलाते हैं तो भारत में फुटबॉल प्रेमियों में मर्डेका का जो है बहुत नाम है, लोकप्रियता है। और मर्डेका को हमारे देश के मीडिया, हमारे देश के फुटबॉल के लोग एक बेंचमार्क समझते हैं कि मर्डेका में फलाना सुभाष भौमिक
हैट्रिक किया या कोई अच्छा किया, तो मैं कहा कि मार्टिका के साथ उसका एक अच्छा लगा। तो ही वॉज काइंड इनफ एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू दैट उन्होंने मेरा सुझाव को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मार्टिका उनके लिए इंडिपेंडेंस का नाम मार्टिका है, देयरफॉर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात करके फिर मार्टिका को रिस्टार्ट करेंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि संभव इस साल जो अक्टूबर में वो मार्टिका करेंगे और भारत को बुलाएंगे। तो ये इट वॉज मोर ऑफ फ्रेंडली जेस्टर, फ्रेंडली views and opinion exchange, and thereafter he agreed. And Kings का भी happy to bless sir. Sir, I'm Jagannath from IAFF. Sir, my question is about this foreign players. You know, you said that you will not be allowing any foreign players in I-League second and state levels. But what about when our Indian players come up and they join the ISL teams? नहीं, ये तो चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर कम अप करे और आईएसएल में खेले, लेकिन वो टीम तो आईएसएल में नहीं जाएगी, क्योंकि स्टेट लीग के जो टीम है स्टेट लीग में खेल रही है, आई लीग 2 जो है आई लीग 2 में खेल रही है, वहाँ से क्वालिफाई करके आई लीग 1 में आ सकती है। लेकिन आइडिया क्या है, मान लीजिए आपके हर टीम में कम से कम 3 फॉरेनर होते हैं, 2 स्ट्राइकर 1 डिफेंडर, नहीं तो 1 स्ट्राइकर 1 सेंट्रल मिडफील्डर 1 डिफेंडर, यही होता है। तो इस रेशियो में हमेशा एक टीम के पास स्ट्राइकर की पोजीशन हमेशा फॉरेन प्लेयर से ही ऑक्युपाइड रहती है, जिसके कारण हमारे पास गोल करने वाला इंडियन स्ट्राइकर की कमी है। नो, आई मीन आप जो सोच रहे 5 साल आगे का सोच रहे हैं, पहले हम अपने देश के स्ट्राइकर बना तो दे, है ना, उसके बाद तो करेंगे। आज की तारीख में इंडियन स्ट्राइकर जो है उस हिसाब से आईएसएल में कम है, आई लीग में कम है, तो कम से कम उस कंपटीशन को क्रिएट कर दें। उसी वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अनलेस यू प्ले, अनलेस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हाउ विल यू शाइन। मास्क उतार लीजिए 1 मिनट के लिए। अब आगे हाँ जी, अच्छा बताएं। In the context of British football, जो आपने decisions लिए हैं, I just want to understand because आप कह रहे थे you can't of course force clubs and people to follow the structure that is created, but you can define the policy. From that regard, are you making any plans to include more women in senior leadership positions? And with regard to the actual decisions that were arrived at, who were the actual women who were involved in that process and the decisions, and how many, if so? देखिए, प्रोसेस इन द सेंस मैंने प्लेयर जो है अच्छा खेले, अच्छे खेलने के लिए उनको अच्छा कंपटीशन मिले, अच्छा कोच मिले। तो लास्ट मंथ हम लोग स्पेन फुटबॉल फेडरेशन के साथ हमारा एक चर्चा रहा, और वहाँ पे चूँकि स्पेन ने विमेन फुटबॉल में भी अच्छा किया, मेन फुटबॉल में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हमने कहा कि आप जो है हमें 3 विमेन फुटबॉल कोच दें, ताकि ये कोचेस जो है हमारे यहाँ पे विमेन फुटबॉलर के डेवलपमेंट में एक सहायक बन सके। और जब आपने मान लीजिए क्या अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि इतने नंबर ऑफ मैचेस, इतनी नंबर ऑफ क्लब टीम्स होनी चाहिए और ये खेल होना चाहिए। हम एक विमेन चैंपियनशिप के नाम पे एक टिकिंग द बॉक्स कर देते थे, फलाना जगह पे 6-8 टीम आ जाए और मैच खेल के चला जाए, 15 दिन 18 दिन 20 दिन में टूर्नामेंट खत्म हो जाए। तो वहाँ से बाहर आने के लिए एक क्या कम से कम 3 महीना 4 महीना का लीग हम कर सकते हैं, क्या हम होम एंड अवे मैचेस कर सकते हैं, क्या मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस हम दे सकते हैं, क्या मिनिमम एक सैलरी हो सकती है। हम ऐसा तो मुझे ऐसा सुनने में आया मिजोरम में 4 लड़की अच्छा खिलाड़ी थी और उनको मिजोरम टीम में लिया गया था। फिर जब मिजोरम टीम को बाहर खेलने आना था, वो खेती में जाना है, उनको खेती करने के लिए जमीन में जाना है, इसलिए वो खेलने नहीं गए। तो एक नेशनल टैलेंट है, नेशनल लेवल का प्लेयर, स्टेट लेवल का प्लेयर, वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उस घर में जमीन जोतना है, जो डेफिनेटली हम तो नहीं चाहते हैं ऐसा। तो कम से कम वो आए और एक बेसिक मिनिमम उनको पता चले कि हम अपने मेहनत करने से इतना हम अपने मिल सकता है, इतना है एक सैलरी मिल सकती है जिसे हम कॉम्पेंसेशन करें, जितना अपने पारिश्रमिक है, मेहनत आ रही है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि पहले हम वो फोकस करें, देयर आफ्टर मान लीजिए एक लीडरशिप हो, वीमेन को लाना हो,
थ्रू प्रोसेस आते हैं। आपने जैसा बोला कि कोलिंग लोग आउटडोर्स का जो लेगेसी टूर्नामेंट्स है इन सबको प्रमोट करना चाहते हो आप, तो फेड कप के बारे में भी कोई प्लानिंग है? और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सर ने अभी संतोष ट्रॉफी का बात बोला, अच्छी है कि सऊदी में जाके हम लोग खेले, लेकिन जो फर्स्ट राउंड था हम लोग देखे दिन में धूप में, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये सब कैसे, क्या सोच रहे हो? नहीं, ये आपका अच्छा सुझाव है, सवाल भी अच्छा है। हम लोग आज ये भी बात को चर्चा में रखा कि ये ऐसा इन दिनों जब हम इतने कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें बात करने का, चर्चा करने का अवसर मिलता है, तो हम सीख पाते हैं। ऐसा 35 डिग्री 37 डिग्री के ऊपर होने से फुटबॉल वो खेलते नहीं है, कूलिंग ब्रेक लेते हैं, या वहाँ फुटबॉल नहीं होता है। हमारे यहाँ तो 30 डिग्री नॉर्मल है, हम तो इसी में खेलते हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमने ये तय किया है, ये निर्णय किया है कि अप्रैल मई में हम चाहेंगे कि यहाँ पे फुटबॉल ना हो, या कम से कम मई में बिल्कुल फुटबॉल ना हो। मई में रात को भी फुटबॉल होने से जो ह्यूमिडिटी होता है, जो डिहाइड्रेशन होती है, उसमें प्लेयर के इंजुरी ज़्यादा होता है, कि पेस ऑफ द गेम घट जाता है। तो हमने इस बात को रखा, लेकिन क्या है कि AIFF सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट नहीं कर सकती है काम, कैलेंडर को भी देखना पड़ता, वो इंटरनेशनल AFC का भी कुछ चैंपियनशिप होती है, वो सारे विषय को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे। इसीलिए 3 बजे मैच हो हम भी नहीं चाहते हैं, और ये होना भी नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग चेंज करके, और ये भी हम प्रयास करेंगे कि यदि ISL का मैच वीकेंड में हो और 5 बजे 7:30 बजे हो, तो आई लीग का मैच भी उसी समय। यदि संतोष ट्रॉफी हम करते हैं तो कम से कम 4:30-5 बजे करें, 3 बजे नहीं, या तो विंटर टाइम पे ये हम करेंगे। फेड कप का भी आज हमने बात रखा, हो सकता है कि अभी इस यहाँ पे हम बैठ के आज के समय पे मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फेड कप को लेकर के हम सोच रहे हैं, या फिर सोच रही है, और इस पर स्टेक होल्डर के साथ बात होगी। Take 2 more questions. जैसा आपने बताया जमीनी सतह पे फुटबॉल है, जैसे आपने बताया सिर्फ केरला या बंगाल या महाराष्ट्र में नहीं है, आपने अध्ययन किया भी होगा, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने पूरा अध्ययन किया, कुछ बता सकते हैं उस अध्ययन में क्या निकला, कहाँ किस तरह की परेशानियां हैं फुटबॉल खेलने वालों को? क्योंकि यूपी में हमने कुछ जगह देखा है जहाँ पे घूमते हैं, बुनाई करते हैं, हैंडलूम चलाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड है तो पानी भर जाता है, बहुत सारी समस्याएं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये देखिए, जैसे कि मैं और सेक्रेटरी जनरल भारत के कई प्रदेशों में हम दोनों गए हैं, और जहाँ फुटबॉल हो रहा है जिस तरह से, या तो और बेहतर हो सकता है, इस विषय पे हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट एसोसिएशन के साथ हमने बात की। अभी आप देखे होंगे कि पिछले महीना मणिपुर में 28 तारीख को ट्रेनिशन का हुआ था। पहली बार मणिपुर में बहुत सारे लोग जो है नेशनल फ्लैग लेकर के भारत का जय जयकार किया। तो एक अच्छा है, वहाँ पे स्टेडियम की कैपेसिटी 29,000 के आसपास था, 25,000 के आसपास था, जबकि 29,911 के आसपास लोग हैं। बाहर फैन जोन में लोग हैं। इम्फॉल एक छोटा सा जगह है, बहुत सारे असुविधा है, चैलेंजेस है, लेकिन फुटबॉल इतना सही है। ये भी आपने ऐसा कहा कि यूपी, तो अभी हमारा अभी तक, क्योंकि हम भी आए हैं आपसे, मैं समझता हूँ कई बार मिलना भी हुआ है हमारा, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन 3 प्रदेशों में अभी हमारा जाना नहीं हुआ। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार हम जब आपसे मिलेंगे, इन 3 प्रदेशों के दौरा करेंगे, और फिर वहाँ किस तरह से फुटबॉल को बेहतर किया जा सकता है उस विषय में बात Last. प्रधान जी, विनायक फ्रॉम ट्रिब्यून। पहले आप ये बताइए कि आपने इतने स्पेसिफिक अमाउंट पे कैसे अराइव किया? व्हाई नॉट 5 लाख, व्हाई 3.2 लाख, इसके में आपने कैसे अराइव किया? दूसरा, as I understand, this is a policy decision, minimum wage. What if a club does not give that minimum wage? What will the AIFF do against the club? देखिए, 3.2 लाख की हम तो, मेरा बस चले तो मैं 30 लाख देने के लिए, लेकिन क्लब के लिए तो संभव नहीं है, और ऊपर का तो कोई सीमा होता नहीं है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी सोचा कि क्लब को भी इतना ना परेशानी में डाले कि बाद में वो मजबूर हो जाए फुटबॉल के साथ दूर हो जाने के लिए, तो सोचे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने दोनों तरफ संतुलन रखते हुए इसको सोचा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो क्लब, ये तो पॉलिसी है, क्लब लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, आप यदि नहीं इसको फॉलो करते तो डेफिनेटली आप उस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, ये तो जाहिर बात है, तो फेडरेशन की नेशनल पॉलिसी है। सो
you have to abide by the rules and law. सर मेरा ये सवाल है कि आप फॉरेन प्लेयर्स को खत्म कर रहे हैं। 90s में जब फुटबॉल इंडिया का ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था तो ये महसूस किया गया कि भाई नेशनल लीग होना चाहिए, लीग होगा, फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो हमारे प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, उनका वर्क कल्चर देखेंगे, उनका हार्ड वर्क देखेंगे। तो फुटबॉल में ऐसा कुछ चेंज आया नहीं। फिर आया कि भाई आई लीग होना चाहिए, आई लीग हो गया, ISL होना चाहिए, और फुटबॉल की स्थिति थोड़ी सी वैसी सुधर नहीं पाई जैसी होनी चाहिए। तो आप एक तरफ तो फॉरेन प्लेयर्स को खत्म कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल से, दूसरी तरफ आप फॉरेन कोचेज ला रहे हैं। विभिन्न के लिए आपने बताया कि स्पेन से बात हो रही है, तो जो हमारे फुटबॉल के जो कोचेज हैं वो कैसे ग्रो करेंगे? फिर उनके भी चांसेस खत्म होते हैं अगर फॉरेन प्लेयर्स आते हैं। एक चीज, और दूसरी ये कि विमेन लीग पे जो आपने बात की, स्टेट की लीग होगी सबकी, तो क्या सारी स्टेट यूनिट से आपकी बात हो गई है, सब एग्री कर रहे हैं? जी, हम बिना उनसे बात किए आपके सामने कैसे बात रखे, है ना? तो हम तो बात करके आए। उसमें समस्या है कि जैसे दिल्ली में विमेन की लीग होती है तो इसमें मोस्टली पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, इधर की लड़कियां आके खेलती हैं। तो अगर उन स्टेट्स में भी लीग होगी, यहाँ भी लीग होगी, तो वो कैसे करेंगे? एक स्टेट की दूसरे स्टेट में लड़के तो खेलेंगे। सर क्या है, हमारे यहाँ जो एक CRS सिस्टम हो गया है उसमें ये सारे विषय का जो है समाधान है। तो आप यदि उसको थोड़ा सा देखेंगे गौर से आप समझ जाएंगे। और ये फॉरेन प्लेयर हमने ख़त्म नहीं किया। सन 2000 में जर्मनी ने यूरो कप में बहुत खराब प्रदर्शन किया था, तो बाद में उन्होंने जब एक इंटरनल उन्होंने एनालिसिस रखा तो उन्होंने देखा कि बहुत कम पैसे में साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से प्लेयर जर्मनी में खेलते हैं। और क्योंकि यूरोप के एक मिनिमम वेजेस है, आप नहीं भी खेलते हैं तो भी आपको कहीं काम करते हैं तो आपको पर आवर 1 यूरो मिलता है। तो उससे क्या है, उससे कम पैसे में एक खिलाड़ी खेलते थे। तो जो लोअर डिवीजन है, लोअर डिवीजन में जर्मन खिलाड़ी खेलते नहीं। इससे क्या होगा कि लोअर डिवीजन से आप जर्मन खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो ये जो डेवलपमेंट जो प्रक्रिया है उस पर जर्मन पीछे हो जाएगा, जिस कारणवश उन्होंने 2000 में इनका खराब प्रदर्शन रहा यूरो चैंपियनशिप। तो इन्होंने तुरंत क्या किया, उनके वहाँ पे 7 लीग होती है, 7 डिवीजन लीग होती है, उसमें से बुंदेसलीगा 1 और 2 छोड़ करके बाकी सब जगह में फॉरेनर बंद कर दिया। तो क्या होता है, जब आपके देश के टॉप डिवीजन होते हैं, टॉप डिवीजन आप मेरिट पे आते हो, आपका अच्छा मेरिट है क्योंकि वहाँ पे देश के, विश्व के सभी टॉप प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन जब नीचे वाले आते हैं फिर मेरिट पे नहीं आते, क्योंकि आपका बच्चा भी मान लीजिए वो नॉविस है, दूसरा भी। हमारे देश में क्या होता है, इट इज मोर ऑफ फिजिकल सुपीरियरिटी। एक हम आपके पास मान लीजिए 5 फीट 7 इंच 5 फीट 9 इंच की लड़का जिसकी बॉडी वेट 65 to 70 के आसपास है, वो फिजिकली हार जाते हैं अफ्रीकन लड़के के पास, तो फिर उसको स्कोप नहीं मिलता। फिर देयर यू आर नॉट एनकरेजिंग द मेरिट, देयर यू आर, आप किससे हार रहे हो? आप फिजिकल एबिलिटी के साथ हार रहे हो। आप कैसे बॉक्सिंग में अच्छा कर लेते हो? क्योंकि आप सेम वेट के साथ करते हो। आप क्यों फुटबॉल में नहीं कर पाते हो? क्योंकि उस पर कोई वेट का ये नहीं है, सीमा नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसी को सोचे कि बॉटम जो है, लोअर डिवीजन जो है, लोअर डिवीजन में अपने बच्चों को खेलने का ज़्यादा ज़्यादा अवसर। ये रहा एक बात। वो तो फॉरेन प्लेयर खेलेगा टॉप डिवीजन में, यदि वो अच्छा प्लेयर है, जूझ सकते आकर के खेले। ISL है उनकी, ओपन मार्केट है, आई लीग है, ओपन मार्केट। देश में 24 टीम में कम से कम यदि हम एवरेज 5 प्लेयर भी मानते हैं, फिर भी आप ले देके 120 फॉरेनर की जगह दे रहे हो, इससे अधिक क्या चाहते हैं? तो आपकी दूसरी बात है फॉरेन कोचिंग। हमारे पास क्या है, आज की तारीख में देश में जो जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से हमारा कोच बहुत कम है। हमारे पास सिर्फ 19 के आसपास लाइसेंस कोच है। तो हमने कोचेस डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम रखा है उससे हमने रखा अगले 3.5 साल में हर प्रदेश से, जो छोटी प्रदेश है उससे 50 कोच, 50 एक्स प्लेयर मान लीजिए जो जिनके साथ फुटबॉल कभी ना कभी फुटबॉल के साथ जुड़े थे, और यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे बड़ी प्रदेशों में वो 80-100 एक्स प्लेयर को जोड़ते। तो स्टेट एसोसिएशन हमें नाम भेजेंगे, हम उनको क्या करेंगे, कोचेस एजुकेशन देंगे। तो इस हिसाब से हमारा अगले 3 साल में मान लीजिए हर प्रदेश से यदि हम एवरेज 50 मानते हैं तो 1800 कोच होना चाहिए हमारे पास ए लाइसेंस। आज आपके पास सिर्फ 19 है, तो हम जब 3 साल के बाद 1800 कोच हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं होगी बाहर से कोच लाने की। और रही बात, दूसरी बात, मान लीजिए अभी हमारे कोचेस उतने एजुकेटेड नहीं हुए इन द सेंस ऑफ फुटबॉल एजुकेशन,
नहीं हुए हैं जो कि हम वर्ल्ड के साथ जुड़ सकें। जब हम हो जाएंगे उस तरह तो डेफिनेटली हम अपने लोगों के लिए हम प्रयास करेंगे कि जितने अपने लोग इस पे काम करें उतनी अच्छी। ठीक है, थैंक यू। Thank you. Please follow us for refreshments and IT.